ऑपरेशन ऑन सेट्स को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ेंगे इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। तो इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन के लिए सिंबल है इस सिंबल को बोलते हैं कैप। यूनियन के लिए सिंबल था ये, इसे बोलते हैं कप। तो अगर हम दो सेट लेंगे ए और बी, उनका इंटरसेक्शन लिखेंगे तो उसको बोलेंगे ए इंटरसेक्शन बी आर ए कैप बी। दिस इज कैप और दिस इज द सिंबल फॉर इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स को हम पहले दो सेट लेते हैं और उस इंटरसेक्शन को डिफाइन करते हैं। तो इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स क्या है? देन राइट डाउन द इंटरसेक्शन ऑफ the sets A and B is the set of R is the collection of all elements belonging to both the sets A and B. So write the intersection of the two sets A and B each the set of is the set of are the collection of all elements belonging to both sets A and B। या आप इसको सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं द इंटरसेक्शन ऑफ द टू सेट्स A and B is the set of R is the collection of all elements which are common in the sets A and B, which are common in A and B। Which are means those elements are। तो दो सेट आपको ए और बी दिए गए हैं, उनमें ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट होंगे दैट एलिमेंट विल बी इन द इंटरसेक्शन ऑफ द टू सेट्स ए एंड बी। मतलब ए इंटरसेक्शन बी में वे एलिमेंट होंगे जो ए और बी दोनों में कॉमन है। तो सिंबॉलिकली मैथमेटिकल वे में इसको लिखते हैं दैट इज we define A intersection B is equal to X such that collection of all X belongs to A and X belongs to B। A intersection B is equal to X such that X belongs to A and X belongs to B। और AND के लिए सिंबल हम अगर लिखें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं X such that X belongs to A and X belongs to B। अलजबरा में ये सिंबल
एंड डिनोट करता है। एंड के लिए सिंबल ये है। आर के लिए कल मैंने आपको बताया था, दिस इज आर। ये सिंबल अगर बना दिया तो क्या हो जाएगा, आर। ये सिंबल बना दिया तो क्या हो जाएगा, एंड। नाउ therefore if x belongs to A intersection B implies and implied by x belongs to A and x belongs to B. If x belongs to A intersection B implies that x belongs to A and x belongs to B, and x belongs to A and x belongs to B implies that x belongs to A intersection B. Now इसको जनरलाइज फॉर्म में हम लिख सकते हैं। नोट, if A1, A2, A3 and so on An are a finite family of sets, then we have A1 intersection A2 intersection A3 intersection and so on intersection An। ये इन सब का इंटरसेक्शन हो गया। इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हैं, इंटरसेक्शन I2 1 n I is equal to 1 to n AI। तो अब इसमें कौन से एलिमेंट होंगे, therefore इंटरसेक्शन I equal to 1 to n AI x such that x belongs to AI for all I, for all I। Now examples of intersection of sets। Examples, if A equal to 1 2 3 4 and B is equal to 2 4 5 6 and 7, then A intersection B, A intersection B क्या होगा, A intersection B क्या है, the collection of all elements which are in both A and B। A और B जो दोनों में है, A और B में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं, those elements will be in A intersection B। तो इसमें कॉमन एलिमेंट क्या है, आप देख रहे हैं 2 and 4 is in A and 2 and 4 is in B।
तो 2 and 4 belongs to A, 2 4 belongs to B. Therefore in A intersection B we have 2 4. Example 2, if x is equal to A B C, y is equal to C D E F and z is equal to C K L. Now we have to write x intersection z, y intersection z. What we have? x intersection y intersection z. इस इंटरसेक्शन में वे सभी एलिमेंट होंगे जो x y z तीनों में कॉमन हो। तो यू सी C belongs to x, C belongs to y, C belongs to z. Therefore in this intersection, x intersection y intersection z, we have only one element, that is C. This is the intersection of sets. Now we have one more definition, that is disjoint sets. Disjoint sets. Note, डिसजॉइंट सेट्स क्या होते हैं? तो डिसजॉइंट सेट, अगर दो सेट हम लें A और B और उनके इंटरसेक्शन में कोई एलिमेंट ना हो, मतलब दो सेट आपके पास A और B हैं, अगर उन दोनों सेट में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है तो उसे बोलेंगे डिसजॉइंट सेट्स. A and B आर डिसजॉइंट सेट्स. तो द सेट्स A and B are said to be disjoint if A intersection B equal to phi, null set. A intersection B is equal to phi, no element in the intersection of A and B. लेकिन अगर A intersection B phi नहीं है तब क्या होगा? But if A intersection B is not equal to phi, then A और B कैसे सेट कहे जाएंगे? A and B are said to be intersecting sets. Intersecting. दो सेट आपके पास हैं या तीन सेट हैं, तो A और B क्या है? A और B दो सेट हैं आपके पास, अगर इनका इंटरसेक्शन A इंटरसेक्शन B इक्वल टू phi है, नल सेट है, एम्प्टी सेट है, तो A और B को क्या कहेंगे? डिसजॉइंट. अगर A इंटरसेक्शन B नॉट इक्वल टू phi है, नॉन एम्प्टी सेट है, तो A और B को क्या कहेंगे? इंटरसेक्टिंग सेट्स. इसका एग्जांपल देखिए. एग्जांपल, if
A is equal to 2, 4, 6, B is equal to 1, 3, 5 and C is equal to 2, 8, 10। ये तीन सेट आपके पास हैं। आप देखिए ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करिए। ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? ए इंटरसेक्शन बी मतलब क्या हुआ? ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उसको हम इस सेट में लिखेंगे। तो ए में देखिए 2, 4, 6 है, बी में 1, 3, 5 है। तो इन दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, क्योंकि इसमें 2, 4, 6 है, इसमें 1, 3, 5 है। तो कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा? 5। वही आप ए इंटरसेक्शन सी निकालेंगे। ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी फाइंड आउट करेंगे तो क्या आएगा? ए में 2, 4, 6 एलिमेंट है, सी में 2, 8, 10 एलिमेंट है, ये सब एलिमेंट। तो आप इसमें ए और सी में कॉमन क्या है? 2 है। तो ए इंटरसेक्शन सी क्या हो जाएगा? 2। इस सेट में ये एलिमेंट रहेगा। यही आप बी इंटरसेक्शन सी निकालेंगे तो क्या होगा? बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी जब निकालेंगे तो आप देख रहे हैं बी में 1, 3, 5 है और सी में 2, 8, 10 एलिमेंट हैं। देयर इज नो एलिमेंट इन कॉमन। बी और सी में कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जो दोनों में हो। सो बी इंटरसेक्शन सी विल आल्सो बी 5। तो अब आप देख रहे हैं ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5, देन व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट ए एंड बी आर डिसजॉइंट। ए एंड बी disjoint sets, और B intersection C is equal to 5 means B and C also disjoint। A और C में एक एलिमेंट है कॉमन, तो A and C are intersecting। sets, disjoint sets। A and B are disjoint sets because A intersection B is equal to 5। ये A and B disjoint कब कहे जाएंगे? जब A intersection B 5 हो। A intersection B is equal to 5, A and B disjoint। B intersection C is equal to 5, B and C are disjoint। A intersection C not equal to 5, then A and C are intersecting sets, right? Now अब इसके बाद हम बताएंगे आपको रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स बाय वेन डायग्राम। वेन डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? रिप्रेजेंटेशन
बाय वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम क्या है पहले ये जान लीजिए। तो किसी सेट को हम पॉइंट्स में अगर किसी क्लोज्ड कर्व में रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज नोन एज वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन। तो यूनियन ऑफ सेट्स को वेन डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? नंबर वन, यूनियन ऑफ सेट्स। तो let there be two sets, let A and B be two sets। A यूनियन B हमको रिप्रेजेंट करना है। ये यूनिवर्सल सेट है जिसको रेक्टेंगल में मैंने रिप्रेजेंट कर दिया, दिस इज यू। और इसमें दो सेट हैं आपके पास, ए एंड बी। दिस इज ए एंड दिस इज बी, ए एंड बी। तो ए और बी को लेते हुए ए और बी के सभी एलिमेंट किसमें रहेंगे? यूनियन में। तो ऑल दीज एलिमेंट्स ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? ए यूनियन बी। तो दिस विल रिप्रेजेंट ए यूनियन बी। अब इसमें आप एक बात देखते होंगे, ए यूनियन बी क्या, ए क्या है? ए इज सबसेट ऑफ ए यूनियन बी एंड बी इज आल्सो सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। क्योंकि ए और बी के को मिला करके सभी एलिमेंट ए यूनियन बी में होते हैं। कोई एक्स ए में है या बी में है तो वह ए यूनियन बी में होगा। देयरफॉर ए विल बी सबसेट ऑफ ए यूनियन बी एंड बी इज आल्सो सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। सेकेंड है इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन। इंटरसेक्शन एक मैंने यूनिवर्सल सेट बनाया। यूनिवर्सल सेट ऐसा सेट जिसमें सभी एलिमेंट हैं, कंटेनिंग ऑल एलिमेंट्स, और जितने सेट्स हैं अंडर कंसिडरेशन सब इस यूनिवर्सल सेट के सब सेट हैं। सो ए एंड बी आर सबसेट्स ऑफ यू, यूनिवर्सल सेट। तो अब इसमें आप देखिए, दिस इज सेट ए एंड दिस इज सेट बी, दिस इज सेट ए एंड दिस इज सेट बी। और ए बी में जो कॉमन एलिमेंट हैं ये, द कॉमन एलिमेंट्स इन ए एंड बी will belongs to the set of A intersection B। तो ये क्या हो जाएगा? ये A intersection B। ये सेट क्या है? दिस सेट will be A intersection B। ये पूरा सेट क्या है? दिस इज A union B। इसमें आपने देखा
A is subset of A intersection B, B is subset of A is subset of A union B and B is subset of A union B। लेकिन इसमें आप क्या देख रहे हैं, A B में जो कॉमन एलिमेंट है, this A intersection B contained in A, therefore we write A intersection B subset of A, and also A intersection B is subset of B also। A intersection B is subset of A and A intersection B is also subset of B, क्योंकि A intersection B क्या है, A में भी कंटेन्ड है और A intersection B B में भी कंटेन्ड है। Now we have some large of algebra of sets, large of algebra of sets। A यूनियन B, A इंटरसेक्शन B, जो मैंने A और B के बीच में यूनियन लिखा, तो ये यूनियन इंटरसेक्शन ये ऑपरेशन हुआ, और इसी ऑपरेशन को हम अलजेब्रा के सरकमफेरेंस में रखते हैं। तो ये जो अलजेब्रा ऑफ सेट्स है, A इंटरसेक्शन B, A यूनियन B, और आगे भी और आप पढ़ेंगे A डिफरेंस B, तो इनके लिए कुछ लाज हैं, तो उस लाज को हम देखेंगे। नंबर 1, यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों लाज हम एक साथ लिख रहे हैं। तो फर्स्ट लॉ इज आइडेम्पोटेंट लॉ, आइडेम्पोटेंट लाज। तो आइडेम्पोटेंट लॉ फॉर यूनियन, we have A union A, this is number 1, और इसका ये पार्ट है फॉर यूनियन। A union A is equal to A। फॉर इंटरसेक्शन A intersection A equal to A। This is idempotent law for union and for intersection। Number 2, second law is identity law। तो identity laws, identity law for union and identity law for intersection, दोनों को मिला के बोलेंगे आइडेंटिटी लॉज। तो नंबर 1, फॉर यूनियन A यूनियन फाई इक्वल टू A। A को फाई के साथ यूनियन लेंगे तो क्या होगा, A एलिमेंट ही होगा। नंबर 2, A intersection universal set, this is not union, this is universal set। तो A और यूनिवर्सल सेट में कॉमन क्या है, A, सो A intersection universal set is A, this is identity law। नंबर 3,
Number 3 is commutative large. Commutative large. So first, commutative law for union. A union B equal to B union A. This is commutative law for union. Second, commutative law for intersection. A intersection B equal to B intersection A. ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट हैं वो बी और ए में कॉमन एलिमेंट रहेंगे. ए यूनियन बी के जो एलिमेंट रहेंगे वो बी यूनियन ए के एलिमेंट रहेंगे. नंबर 4 इज एसोसिएटिव लॉ. एसोसिएटिव लॉज. Associative law for union and for intersection. तो लिखते हैं 1 A union B union C is equal to A union B union C. A union B union C is equal to A union B union C. Second, A intersection B intersection C is equal to A intersection B intersection C. This is associative law for union and this is associative law for intersection. Number 5, distributive law. Number 5 is distributive laws. Number 1, A union B intersection C union distributes over intersection. A union B intersection A union C. This is distributive law. Here union distributes over intersection. Number 2, A intersection B union C. A intersection B union C. This is A intersection B union A intersection C. A intersection C. तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज में फर्स्ट है A यूनियन B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C. A इंटरसेक्शन B यूनियन C में है A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C. दीज आर द लॉज. एक लॉ और है जिसको बाद में बताएंगे आपको, लेकिन कल इन लॉज का आपको प्रूफ बताएंगे कि कैसे प्रूफ किया जाएगा इन लॉज को. सो टुमारो आई विल स्टार्ट विद द प्रूफ्स ऑफ दीज लॉज. दैट्स ऑल.